Hey guys, welcome to another video of Ashish Singh. And this video is for the upcoming 10th graders. So, as you know, I was in 10th grade like in 2024, and this year I have given my board examinations. So, I thought to share some of my mistakes, experiences with you on my channel. And in this video, I'm gonna share all the reference work I used as a 10th grader. Let me show you just a minute. Okay. Okay, okay, so these are the books I use. Okay. I have wait. I have used these books in my 10th grade along with my NCRTs. Just a minute. Okay, so now I arrange them there and I will take one by one and share with you guys what are the books you should use as a 10th grader, and I will also mention some of the mistakes that you should not do regarding your books, reference books, in the starting of your 10th grade. Okay, so let me start with, okay, first of all, NCRT is a must, and these are the books for some extra knowledge, some extra questions and all, but NCRT is must. Okay. Okay, so first are these books that I guess you would get along with your course, 10th grade course. Okay, so these maybe you will not able to see properly. I will show you. Okay, so these are the books, S. Chand books. These books are very nice if you want to study deeply about the chapters with biology, chemistry, and physics, and you can get it along with your course maybe. So maybe there's no need to mention, but I have not used it. The thing I have to mention is that I have not used these books the whole year. I had thought to use them in the starting of the year, but I have not used. Maybe I've used for a short period of time. Okay, so I have not used for the whole year and all. Next are the books from Exam Guru. Okay, so I have not bought them. My brother was in 10th grade in 2021, so he have bought some of the books that I am also using when I came in 10th grade. So personally I like them and I use them. फायदा उठा रही हूँ भाई की books का. Okay. Okay, so first of all is this Hindi book, and maybe you not known it or maybe you knew it, that in 2022 the board examinations were in two terms, like term 1 and term 2. Term 1 was a MCQ one and term 2 was a subjective one, and so this is for the term 2, and in this some specific chapters are mentioned because they were in two terms now. Okay, so some of the things are mentioned in it about like summary दे रखी है overall, and some questions are given along with the sample papers, but I have not used it. क्या यूज किया है फिर? Next is the social science one, and you know what, I have used it. इसके नोट्स एक नंबर मस्त नोट्स है इसके, एंड मैंने सिविक्स तो इससे ही पढ़ी है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स मैंने नोट्स बनाए ही नहीं थे, तो मैंने इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, एंड मैंने बस इसके नोट्स पढ़े थे, सही में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, एंड देवर इनफ, सही में इनफ थे. एंड नेक्स्ट आई हैव मैथमेटिक्स वन, बट मेरे भाई के पास स्टैंडर्ड थी एंड मेरे पास बेसिक थी, सो ये मेरे किसी काम की नहीं है, मतलब मेरे काम नहीं आई. ठीक है. और नेक्स्ट वन है साइंस, एंड मैंने इसे भी यूज़ नहीं किया क्योंकि बिकॉज मैं अपने साइंस के नोट्स तो हैंड रिटन ही बनाती थी, सो इसमें नोट्स वगैरह हैं, क्वेश्चन है, बट ओके, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं. हाँ, मैंने इसमें एक चैप्टर के नोट्स पढ़े थे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, के नोट्स बहुत अच्छे हैं, अगर पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छे नोट्स हैं इसके. एंड हाँ, मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, एक भी ब्रांड या फिर एक भी बुक कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, अभी तक मेरी रिकमेंडेशन नहीं है. मैं अभी जस्ट बता रही हूँ मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ करी है, रिकमेंडेशन मैं लास्ट में बताऊँगी. नेक्स्ट इज दीज आर ओसवाल की बुक. कंडीशन इसकी देखो कैसी कर रखी है, भीग गई थी शायद. ओके, सो ये है ओसवाल की वन शॉट बुक्स. इनमें ये भी अच्छी हैं, इनमें एमसीक्यूज के बनाए गेस. एमसीक्यू है मेरे पास साइंस के, सोशल साइंस के, इंग्लिश वगैरह के. तो ये क्यूट सी मिनी बुक्स हैं जिनके अंदर एमसीक्यूज गिवन है. तो मैंने इन्हें भी थोड़ा बहुत यूज़ किया था, लाइक कम्प्लीटली मैंने मेरे भाई की बुक्स यूज़ नहीं करी थी ये ओसवाल की 10 ईयर सॉल्ट पेपर्स, जो कि मैंने लाइक बहुत कम करा है इसे.
क्योंकि मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम ही ख़रीदी थी, ऑनलाइन मंगाई थी। एंड मैंने इसे बहुत कम यूज़ किया और मेरे बिकॉज मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हुई थी। क्या हो गया था मतलब, फॉर सम रीजंस मेरा जो मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज नॉट वेरी गुड। ओके, सो क्यों हुआ ऐसा मैं उसके लिए कल वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मैंने बुक खरीदी पर मैं इसे यूटिलाइज नहीं कर पाई। कभी और उसकी स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। अगेन बुक्स फ्रॉम ओसवाल, दीज आर सैम्पल पेपर्स। मेरे पास इतनी 4 बुक्स। ओके, सो दीज आर सैम्पल पेपर है ना, सैम्पल पेपर ही है ना, हाँ सैम्पल पेपर ही है। तो दीज आर द सैम्पल पेपर फ्रॉम ओसवाल। सबसे पहले मैथ्स का स्टैंडर्ड का है, मेरे किसी काम का नहीं है। दैन बाकी साइंस वगैरह के थे मैंने यूज़ नहीं किए, जो कि पुराने सैम्पल पेपर थे, ये सोच के पता नहीं मैंने यूज़ नहीं करे, बट मैंने अपने खुद के खरीदे थे। फिर नेक्स्ट इज बिकॉज इसमें क्या था ना, टर्म वाइज था ना, तो मेरे को पूरे चैप्टर्स नहीं आ रहे थे, मेरे को तो पूरे ही आने थे ना। नेक्स्ट इज ये अरियंत की सैम्पल पेपर बुक थी ऑफ सोशल साइंस एंड इट वॉज वेरी नाइस वन। Okay, and the books I have bought now comes. So these are the sample paper I have bought, and these are from Oswali Educart. And yeah, Prashant Bhaiya, Digrat sir, and one more is for maths में पता नहीं किसका है, शोभित भैया का तो नहीं है, मिसेस मानसी शर्मा। ओके, सो ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर्स ना मैंने लाइक कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं करे थे, ऐसे नहीं कि मैंने सारे सैम्पल पेपर करे थे, सारे नीचे भी बैच के द्वारा बहुत ही कम किए या करे ही नहीं, नहीं करे हैं लेकिन इतने नहीं करे। इसके पीछे भी जो मैंने बोला ना, वो ओसवाल की मैंने PY की वाली बुक क्यों नहीं करी, तो इनके पीछे एक स्टोरी है, गाय बोर्ड एग्जामिनेशन स्टोरी, सो मैं शेयर करूँगी। नेक्स्ट आर दीज PY बुक्स, ये कृति शर्मा दीदी बुक्स एंड ये स्कोर 100 बुक्स है, जो कि मेरे पास बैथ्स की भी है बट अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, ठीक है। ओके, सो PY की बुक है और ये वाली बुक्स है जो मैंने सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करी है PY की, और साइंस की तो भाई मैंने लाइक पूरी कर ली थी शायद, मतलब मैंने PY की कुछ बहुत करे हैं, मतलब ये कह सकते हो आप लोग। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आई हैव बॉट दीज ड्यूरिंग माई समर वेकेशन, आई बॉट दीज वन शॉर्ट बुक्स, चले मैंने भाई बुक्स अच्छी है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, अच्छी बुक है। अगर तुम क्वेश्चन बैंक अच्छे चाहते हो तो बहुत बहुत अच्छे लगे मुझे तो, बट मैंने पूरे नहीं करे, लाइक मैंने पूरी बुक नहीं करी है एंड इस बात का मुझे दुख है। एंड मैंने स्टैंडर्ड की खरीद ली थी जबकि मेरे पास बेसिक है, नहीं सॉरी साइंस की, स्टैंडर्ड की खरीद ली थी जबकि मेरे पास बेसिक है, पर ठीक है। फिर मैंने उसे रिटर्न भी नहीं करी। मतलब मेरे पास क्वेश्चन बैंक्स PYQ सैम्पल, मेरे भाई की जो बुक्स थी रेफरेंस, जो CBSE की थी, सब सारी बुक्स अवेलेबल थी। बट द ट्रुथ बिहाइंड ऑल दीज बुक इज़ कि मैंने सारी, ऐसा नहीं कि मैंने इतनी सारी बुक्स खरीदी, बट ऐसा नहीं है कि मैंने एक भी बुक को लाइक मैंने इतनी सारी खरीद ली थी तो मेरे पास कन्फ्यूजन हो गया था कि वो करूँ, तो मैंने एक को भी ना कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं किया, ये मुझे ऐसा लगता है। चलो अब मिस्टेक्स पे चलते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहला तो मैंने ऐसे बोल दिया शायद वीडियो के अंदर ही, फर्स्ट मिस्टेक इज़ डोंट बाय बुक्स अननेसेसरली। भाई तू मतलब तुम्हारे फ्रेंड ने देख लिया, तुमने देख लिया भाई मेरे फ्रेंड ने वो बुक खरीदी है, वो बात खरीदो ऐसे करके भाई। तो मैं बोलूँ कि मैंने मेरे फ्रेंड के पास देखी कि उसके पास वन शॉट बुक क्वेश्चन बैग है, तो मैंने भी खरीद लिया, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया, उसने यूज़ कर लिया। तो किसी और को देख के बुक मत खरीदो, किसी ब्रांड। हाँ, सेकेंड मिस्टेक यही है, कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है उसकी बुक्स को, ये ऐसा करके मत खरीदो यार। दूसरा खरीदा है इसलिए बुक मत खरीदो, कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए बुक मत खरीदो, कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर कोई प्रमोट कर रहा है इसलिए मत खरीदो। और ख़रीद रहे हो तो देखो, थर्ड मिस्टेक यही है, तो खरीद रहे हो ना तो एक बुक खरीदो, ये 10-15 बुकें मत खरीद लो एक साथ। तो एक भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, एक बुक करो, इनफ है। 1-2 करो, 2-3 करो, ठीक है। तो 7-8 बुक खरीद लेते हो, तुम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं होता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, 10th ग्रेड में आ गए, पहली बार बोर्ड एग्जाम देंगे, तो तुम थोड़ा होता है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, CBSE वाले ऐसा कुछ नहीं पूछते, तुम इतना लाइक तुम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर रहे हो, और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने में ऐसा कुछ है नहीं, बट ठीक है। बट CBSE वाले ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे कि भाई क्या पूछ लिया, ये ऐसा तुम्हें ऐसा पेपर दे के कुछ नहीं होता भाई। तुम इतने बेकार क्वेश्चन CBSE नहीं देता है जितने प्री बोर्ड्स में पूछ लेते हैं स्कूल वाले, नहीं देता है, बस डराया जाता है इतना। स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम है, बट ऐसा कुछ नहीं पूछ लेते हैं। आई गेस मैंने 3 मिस्टेक मेंशन कर दी, एक तो किसी और को देख के बुक मत खरीदो, दूसरा ब्रांड कोई प्रमोट कर रहा है उनका या कोई कंटेंट क्रिएटर कर रहा है ऐसे मत करो यार। तुम्हें जो पर्सनली तो
एक खरीदो। हाँ, थर्ड मिस्टेक यही है, एक दो बुक्स खरीदो, ज़्यादा एक साथ मत खरीदो, नहीं कर पाओगे, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारा टाइम भी बर्बाद होएगा और तुम यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे और कन्फ्यूजन होगा वो अलग, ठीक है। एंड लास्ट मिस्टेक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोग क्या, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने इतनी सारी रेफरेंस बुक्स खरीद ली, तुम बस एक एनसीईआरटी कर लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही बस एनसीईआरटी करो, मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी पहले करो। एनसीईआरटी इज मस्ट। अगर तुम्हारे पास मैथ्स बेसिक है ना, मेरे पास थी बेसिक, मैंने इतनी अच्छे से एनसीईआरटी नहीं करी, मेरी मैथ्स है ना, एक मेरे मैथ्स का मेरा एक 36 का आंकड़ा है, उसका रिश्ता मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी, जो कि मैं बताने भी वाली हूँ क्या हुआ था मेरे मैथ्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है, वो मैं अलग वीडियो में बताने वाली हूँ। बट द थिंग इज कि एनसीईआरटी इज मस्ट, कोई भी ले लो, तुम सोशल साइंस ले लो, तुम साइंस ले लो, तुम मैथमेटिक्स ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, एनसीईआरटी इज मस्ट। सैम्पल पेपर, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विद द चैप्टर्स तुम कर सकते हो, एंड पीवाईक्यूज भी करो, सैम्पल पेपर भी करो, सब करो। बट 10-15 हर ब्रांड की बुक मत खरीदो, तुमने उस वाले की भी खरीदी, तुम्हें एडुकेट की भी, टॉपर है जो बच्चे होते हैं ना, सारी बुकें उनके पास, कोई भी मिलेगी तुम्हें, तुम्हें वन शॉट बुक चाहिए, तुम्हें वीआई की बुक चाहिए, उसके पास हर ब्रांड की बुक है, इतना भी मैस मत, जो खरीद रहे हो उससे अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू में ये इतनी सारी चीज़ें खरीद के। एंड सो गाइस, एट द एंड मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं दूंगी, वो ये है कि आपने देखा मेरे पास कितनी सारी बुक्स थी, बट मैंने जैसे कि हर बुक के बाद में ही बोला कि मैंने किसी को भी अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। ये जो सारी बुक्स मैंने आपको बताई ना, ये सारी अच्छी हैं। हाँ, मेरी रिकमेंडेशन, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी एक ब्रांड को मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ कि वो ही अच्छा है बाकी बेकार है। ओसवाल भी अच्छा है, एडुकार्ड भी अच्छा है, और जो भी ब्रांड्स हैं सब अच्छे हैं, बुक्स सब अच्छी होती है, बस पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ, तुम क्वेश्चन बैंक में करो अलॉन्ग विद द चैप्टर्स, तुम पीवाईक्यू करो, तुम सैम्पल पेपर करो, बट किसी स्पेसिफिक ब्रांड का करो, दुनिया जहाँ की चीज़ें मत करो, कोई स्पेसिफिक चीज़ करो, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ। एंड ये सारी बुक में से ऐसा नहीं है कि मैं एक वो उठाऊंगी कहूँगी देखो देखो इसमें ये कमियाँ हैं, ये अच्छी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, बस जो भी खरीद रहे हो ना अच्छे से करो, ये बोलना चाहती हूँ मैं। ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक बुक उठाई भाई इसमें देखो ये मिस्टेक्स हैं, ये इसके मेरिट्स हैं, ये डीमेरिट्स हैं, मैं ये सब नहीं बताने वाली हूँ। मैं बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो बुक खरीदो जो मैंने दिखाई है ना, वन शॉट देखो, तुम वन शॉट बुक देखो, चलो एक बार बता ही देती हूँ। तुम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लो, जैसे तुम्हें वन शॉट क्वेश्चन बैंक खरीदना है, एडुकार्ट इस बार नया निकालेगा तो वो खरीद लो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक करो स्टार्टिंग से। उसके बाद में जब साल थोड़ा एंड में आ जाए, नवंबर दिसंबर, पीवाईक्यूज और सैम्पल पे स्टार्ट कर लो, अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है तो, नहीं तो जनवरी में भी कर लो, दिसंबर में तो कर ही लेना स्टार्ट, ठीक है, कर लो। तुम्हें ये वाले करने हैं ये कर लो, मैं कहाँ गए वो, तुम्हें ये वाले सैम्पल पेपर करने कर लो यार, बस कर तो लो। ये वैसे मेरे को अच्छे लगे एडुकार्ट के सैम्पल पेपर, ठीक है, अच्छे हैं, क्यूट से हैं। यहाँ में प्रिंट अंदर की क्वालिटी भी अच्छी है, बाहर की क्वालिटी भी अच्छी है। अलॉन्ग विद द सैम्पल पेपर में कुछ पेपर भी मिल जाएंगे, सॉल्व करने की एक शीट भी मिल जाएगी, मैंने को लिख भी रखा है, ये देखो दिखाती हूँ, मेरी इंग्लिश की मैं चेक भी करती थी, ये देखो इंग्लिश के, आप इस तरीके से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड इट वॉज वेरी इफेक्टिव टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज मिस्टेक्स यू आर डूइंग। एंड जैसे कि मैंने बोला, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन बैंक करो अलॉन्ग विद चैप्टर, पीवाईक्यू करो, सैम्पल पेपर करो, कोई भी ब्रांड के करो, मैटर नहीं करता है। मैंने सारी बुक्स इसलिए दिखाई, जस्ट मुझे दिखाना था मैंने कौन कौन सी यूज़ करी है। एंड मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये ब्रांड्स जो मैंने यूज़ की है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम भी ये यूज़ करो, मैं इसलिए तो मैंने आपको ऐसे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया कि ये बुक्स देखो, ये बुक है, इसमें देखो ये कमी है, ये अच्छा है, सब बुक अच्छी है, तुम पढ़ लो यार, बस तुम पढ़ लो पढ़ने वाले के लिए सब बुक अच्छी है। मम्मी पापा का डायलॉग मार दिया मैंने तो, ठीक है, बस यही मेरे रिकमेंडेशन है। तो ठीक है, किसी भी ब्रांड को ऐसा मत समझो ये बेस्ट, ऐसा कुछ मत समझो, ठीक है, ये सब बेकार है, तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें फोड़नी है 10th क्लास। एंड मैं अपने एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज़ और कुछ मिस्टेक्स या फिर कुछ रिकमेंडेशन देती रहूँगी बीच बीच में, ठीक है, तो देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, देखो मैंने फ़ैन भी नहीं चलवा रखा, वीडियो में दिख रहा होगा मैंने फ़ैन भी नहीं चलवा रखा, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, फ़ैन चला लो, बट एसी तो नहीं चला सकते, तो मुझे सूट भी नहीं करेगा, अभी मेरे कोल्ड हो जाता है जल्दी से, तो
मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है जिससे बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आए। गर्मी में बैठी हूँ गाइस, सो मैं इसे फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, तुम्हें लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू फेल्ट लाइक हाँ ठीक है, इनने अच्छी बात बोली है, तो कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड दिस दैट इज़ फॉर द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। यार मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ। सो दैट इज़ फॉर द वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। I will be back with another amazing video.